The last lecture we started with 4 feature in between, if you remember. 4 feature in between and reissue in between. Remember? 4 feature मतलब आपने बीच में ही शेयर्स को कैंसिल कर दिया, reissue मतलब बीच में ही शेयर्स को इश्यू भी कर दिया, तभी के तभी. तो खाली एक चीज का ध्यान रखना है, you need to multiply your capital by the respective stage. Multiply your capital amount by respective stage. After allotment किया तो 5 रुपया, after first call किया तो 7 रुपया. Remember that. So at what stage are you doing the cancellation and at what stage are you doing the reissue? Multiply your capital by the respective called up value. Is this clear? That is the only different part you need to keep in mind. Now on the same topic, same concept, we'll be doing some more sums. See, करते जाओ. देखो. Next sum. इधर आ जाओ, थर्ड बैग नीचे रख दो. उधर हर्ष बैग डेस्क में डाल. क्वाइट नाउ. रोहन सर में नहीं आई थी. You are? See sum number 28. Sum number 28. All of you see sum number 28. All videos on. Last time I'm telling you, Tanya, Yash, Rutwa, all of videos will be out. Problem number 28. All of you take 28. See now. Quiet. Company forfeited 1,000 shares. Company forfeited 1,000 shares of 10 each for non-payment of final call of ₹2. All the forfeited shares were reissued at 6 per share, fully paid up. Pass the journal entries in the books of the company for forfeiture and reissue. किसका एंट्रीज पूछा है अपने को? सिर्फ forfeiture and reissue. Only 2 entries they have, 3 entries they have asked. forfeiture के साथ reissue भी पूछा, तो reissue के साथ which entry you have to do? Transfer entry. Okay? Now only 3 entries. See, what is the face value of shares? Is there any premium right now? कोई premium है? No premium. Do you know the breakup? How much is application? How much is allotment? How much is first and final call? We just know one thing, that there was a final call of how much? So ये कुछ नहीं मालूम है, लेकिन you can take a clear judgment that all these things, application, allotment, first call, second call, whatever is there over here, that is together how much? Simple है, बराबर. वो कितना है अंदर का ब्रेकअप क्या, we don't know, but that is not of our concern because they have not asked this full-fledged sum. Okay, all the entries you are not supposed to pass, right? Which entries are you supposed to pass? Only forfeiture, reissue and transfer. खाली 3 ही एंट्री पूछा हुआ है आपको, बराबर है ना? तो खाली 3 ही एंट्रीज पास करनी है आपको. सबसे पहली forfeiture entry, is it with premium or without premium? Without premium, right? So without premium, what will be your forfeiture entry? Can you tell me? Equity share capital debit. ये कैपिटल आपको कैंसिल करना है to call in arrear to what? Share forfeiture. सिंपल है, बराबर है. हर एक प्रॉब्लम में आप करते हो एंड में करते हो इसको, नॉर्मली सब कुछ खत्म होने के बाद. यहाँ पर आपको पहले ही पूछा गया है. पहले मतलब ये पहला एंट्री नहीं है, पहले पूरा सम हो चुका है, आपको लास्ट में करना है.
लेकिन प्रॉब्लम में यही 3 एंट्री पूछा हुआ है, फोर फीचर, रीइश्यू एंड ट्रांसफर, राइट। कैपिटल घटा तो डेबिट, कॉल इन एरियर नलिफाई हुआ तो क्रेडिट, एंड फोर फीचर सामने आपका हड़पा हुआ पैसा, राइट। प्रीमियम था सब में, if there was any premium then you can apply the rule, once received should not be debited, not received should be debited। अच्छा, कितने शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो, पढ़ो वहां पे, 1000 शेयर्स। वो क्यों कैंसिल कर रहे हो, why are you canceling the share? Because he did not pay the final call। So what when we conclude out of the given information, he did not pay the final call। So number one, when are you canceling? After final call, at the end। And number two, he did not pay the final call, that means he paid 8 rupees, whether it is towards application, allotment, first call, second call, पहले का सब कुछ भरा हुआ है उसने। क्या नहीं भरा है तो फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल नहीं भरने के वजह से आप कैंसिल कर रहे हो, तो फाइनल कॉल के बाद ही कैंसिल कर रहे हो कि पहले कर रहे हो, बाद में कर रहे हो। तो बेसिकली यू आर कैंसिलिंग एट दिस स्टेज, एट द एंड। So how much will multiply your capital with? 10 rupees, because you are doing it at the end। जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करो। How many shares? 1000 shares multiplied by 10, 10 से आपका कैपिटल कैंसिल हुआ। टू कॉल इन अरियर, देखो आपको प्रॉब्लम तो अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली आप प्रॉब्लम से ढूंढते हो कॉल इन अरियर, राइट। जब प्रॉब्लम अवेलेबल नहीं है आपके पास तो भी आप बता सकते हो इसका कॉल इन अरियर कितना है, आराम से बता सकते हो। 2000, 2 rupees उसने नहीं भरा है, ऑब्वियसली वही उसका कॉल इन अरियर होगा। So 1000 into 2, that comes to 2000, is that right? So how much would be share forfeiture? 8000 rupees, simple, common sense। What is that 8000? The money which he has paid towards capital। Yes, what did he pay? He paid everything, application, allotment, first call, जो भी रहेगा सब मिला के कितना था, 8 रुपया था, उसने 8 रुपया भरा हुआ है, राइट। So 1000 multiplied by 8 will give you what? 8000 rupees, that's what he has paid। This is four feature entry। Simple हो गया यहाँ तक, sorted है। All of you got this? All right, tell me what is the second entry? Reissue का पूछा है, क्या प्राइस पे reissue किया, पढ़ो आप। You have reissued it at 6%। So एंट्री क्या होगी रीइश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट, देन व्हाट, लॉस है कि प्रॉफिट है, 10 का शेयर 6 में जा रहे हैं ना, तो 4 रुपए का लॉस है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। बैंक शेयर फोर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाउ मच यू आर गोइंग टू राइट इन बैंक? 1000 into 6 rupees you are getting, so that's 6। How much you'll write in your capital? What capital? Capital would be 10,000। and how much would be share forfeiture, the loss part? 4000। ये कंपनी अपने जेब से दे रही है। कंपनी क्या बोल रही है, भैया नए शेयर होल्डर को बोल रही है आप 6 रुपए दो, लेकिन आपके शेयर्स 10 के गिने जाएंगे, फ्यूचर में you'll get 10 rupees from us। so 4 रुपया कंपनी का लॉस, दैट्स शेयर forfeited, बराबर है। तो ये एंट्री भी हो गई आपकी। इसमें पूरे सम का स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट आप पहले के कोई भी प्रॉब्लम उठा के चेक कर सकते हो। अब आपको कंसेप्ट पता है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम लो, जो हमने फुल फ्लेजेड प्रॉब्लम्स भी किए हुए हैं ना, जो 10-12 फुल फ्लेजेड पूरे सम किए थे, उन प्रॉब्लम्स में भी आपको अगर डायरेक्टली फोर फीचर, रीइश्यू और ट्रांसफर एंट्री पूछी जाए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बिना एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के एंट्रीज के आप डायरेक्टली एंट्रीज कर सकते हैं by just looking at the question। just looking at the question क्या है, कौन सा स्टेज है वो देखना है। वो एंड में कर रहे हो तो कैपिटल को 10 से करो, अगर बिफोर फाइनल कॉल कर रहे होते तो कैपिटल को 8 से करते आप मल्टीपल, बराबर है। कॉल इन अरियर में कौन सा पैसा लिखा जाता है, जो पैसा उसने नहीं भरा। फोर फीचर में जो पैसा उसने कैपिटल की तरह भरा। ये सब आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा, आपको फुल फ्लेजेड सम करने की जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्टली फोर फीचर, रीइश्यू और ट्रांसफर की एंट्री कर सकते हैं। बात समझ आई? अब ये दो मिल गई तो ये तीसरी वाली तो आराम से मिल जाएगी। व्हाट इज द थर्ड एंट्री? अच्छा, हाउ मच विल यू ट्रांसफर? व्हाई 4000?
कितने का प्रॉफिट हुआ है 8, पहले 8 में से लॉस कितना हुआ 4, एडजस्ट करो तो बचा कितना 4, 4000 का प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर दो 8000 माइनस 4000, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, सॉर्टेड। व्हाट इफ, चलो कर लो यहां तक, फिर बताता हूं क्या है। व्हाट इफ instead of reissuing 1000 shares you would have reissued only 500 shares, तो 500 का एंट्री रीइश्यू एंट्री वुड बी ओनली फॉर 500, तो सब आधा आधा हो जाता है, ये 3 ये 2 ये 5, आपका लॉस होता 2 का। अच्छा फिर आप कितना ट्रांसफर करते, वुड यू डू 8 minus 2 6, you would do what 4 minus, why? देखो इधर 4 फीट कितना गया है 1000, और सपोज रीइश्यू आपने 500 किया है, तो क्या आप 1000 का प्रॉफिट को 500 के लॉस के साथ कंपेयर कर सकते हो? याद है हमने किया था लास्ट लेक्चर, 40 शेयर्स रीइश्यूड, 100 शेयर्स फॉरफिटेड। तो अगर आप 500 रीइश्यू करते तो इधर भी कितने का प्रॉफिट लेने का 500, तो 8000 इज द प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी शेयर्स 1000 शेयर्स, तो 500 का कितना 4000, 4000 माइनस 2000 यू वुड ट्रांसफर हाउ मच ओनली 2000, इधर 1000 कैंसल 1000 किया, रीइश्यू 500 किया, इधर 500 का एंट्री और इधर 2000 ट्रांसफर, 4 माइनस 2, पूरे का नहीं आधा प्रॉफिट लेना। ऐसा हो सकता है पूरा फॉरफिट किया लेकिन पूरा रीइश्यू नहीं किया, उसको बोलते हैं पार्ट रीइश्यू, जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था 40 शेयर्स वाला, आगे भी आएगा एग्जांपल। ये वाला क्लियर है पहले सबको, कैसे करना है बीच में से फॉरफीचर रीइश्यू और ट्रांसफर का एंट्री बैठा दिमाग में? ओके बढ़ो आगे, नेक्स्ट वन, see take sum number 39, all of you take sum number 39, page 135, problem number 39, problem number 39, देखो क्या दिया है, ये नहीं आएगा ये आएगा, सम नंबर 39, देखो ध्यान से, पे अटेंशन। आशा past journal entries for forfeiture and reissue of shares in the following cases, तीनों केस है, तीनों इंडिपेंडेंट केसेस है, तीनों अलग अलग है, कुछ लिंक नहीं है, पहला केस पूरा अलग, दूसरा पूरा अलग, तीसरा पूरा अलग। तीनों केसेस में क्या पूछा गया आपको, ओनली एंड ओनली फॉरफीचर एंड रीइश्यू एंट्री, मतलब हाउ मेनी एंट्री 1 2 3, तीसरी एंट्री साथ में मुफ्त रहेगी, बोलेंगे नहीं, इज दिस क्लियर? तो रीइश्यू के साथ हमेशा फॉरफीचर एंट्री वुड बी 3, बोलेंगे नहीं कभी भी, आपको पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 3 केसेस है, दिमाग लगाना है आपको इसमें, डायरेक्ट फॉरफीचर एंड रीइश्यू पार्ट, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। आशा लिमिटेड forfeited 100 equity shares of 20 each, fully called up। फुल्ली कॉल्ड अप देख के ही पता चलता है कि फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या, पूरा अमाउंट मंगवा लिया है, तो व्हेन आर यू कैंसिलिंग इट? एट द एंड, एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू पर शेयर 20 रुपीस दिया हुआ। Asha Limited forfeited 100 equity shares of 20 each, fully called up for non-payment of first call of 3 per share and final call of 5 per share। इसने क्यों फॉरफिट किया 100 शेयर्स को? क्योंकि उस बंदे ने क्या नहीं भरा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर, ये 2 आइटम भाई ने नहीं भरे।
ये 2 आइटम्स भाई ने नहीं भरे, इसके लिए हम इसके शेयर्स कैंसिल कर। क्या नहीं भरा उसने? फर्स्ट कॉल का 3 रुपया और फाइनल कॉल का 5 रुपया, ये उसने नहीं भरा। तो ऑब्वियसली क्या आप यहाँ पे कैंसिल कर रहे हो आफ्टर फर्स्ट कॉल या आफ्टर फाइनल कॉल? फुल्ली कॉल्ड अप एंड में ही कर रहे हो, और दोनों नहीं भरा इसलिए कैंसिल कर रहे हो, तो उसके बाद ही करोगे, उसके पहले तो करने का सवाल है ही नहीं। तो अभी ये कुछ भी हो सकता है। तो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट इंटरनल ब्रेकअप अपने को फर्क नहीं पड़ता है, टोटल अपने को मालूम है कितना है ये टोटल, ये 12 रुपया है टोटल, जो उसने 12 रुपया भरा है, 12 रुपया उसने भरा है। क्या नहीं भरा है उसने? फर्स्ट और फाइनल। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो सिचुएशन क्या है? उसने एप्लीकेशन भरा, उसने अलॉटमेंट भरा, उसने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया, कंपनी रुक गई, कंपनी ने ताबड़तोड़ फॉरफिट नहीं किया, सेकंड कॉल तक रुकी, सेकंड कॉल भी नहीं भरा, तब जाके उसने कैंसिल किया, तब जाके उसने कैंसिल किया। तो व्हेन आर वी कैंसिलिंग द शेयर्स? आफ्टर लास्ट कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल। इज दिस पार्ट क्लियर? हाउ मेनी शेयर्स आर वी कैंसिलिंग? 100 शेयर्स। अब आगे पढ़ो। 80 shares of these were reissued at 15 per share fully paid up. 80 shares ही रीइश्यू किया है, रीइश्यू किया है लेकिन कितना? 80। और क्या प्राइस पे रीइश्यू किया है? 15 रुपया फुल्ली पेड अप। व्हाट डू यू मीन बाय फुल्ली पेड अप? एट द एंड, एट द एंड। फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप मतलब एट द एंड। 15 पेड अप, 15 कॉल्ड अप मतलब आफ्टर फर्स्ट। 12 पेड अप, 12 कॉल्ड अप मतलब आफ्टर अलॉटमेंट। बताया था ना, पेड अप कॉल्ड अप मतलब स्टेज, पेड अप कॉल्ड अप मतलब स्टेज। 20 पेड अप, 20 कॉल्ड अप मतलब वी आर डूइंग दिस थिंग एट द एंड। ऑब्वियसली अगर आपने फोरफीट एंड में किया तो रीइश्यू एंड में ही हो। फोर फीचर अगर लास्ट में किया है तो रीइश्यू भी लास्ट में ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कैंसल लास्ट में किया और रीइश्यू पहले हो गया। कैन नॉट गो बैक इन टाइम। इज दिस क्लियर? सो फोर फीचर अगर एंड में तो रीइश्यू भी एंड में ही होगा। तो फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब लास्ट। बात समझ आई? यू आर डूइंग बोथ द थिंग्स एट द एंड। ओके। अलग क्या हो रहा है इस सम में और प्रीवियस सम में? पूरा शेयर्स रीइश्यू नहीं होता। आपने फोरफीट कितना किया था? 100 शेयर, और रीइश्यू कितना किया था? सिर्फ 80 शेयर्स, राइट? 80 शेयर्स रीइश्यू किया। कीप दैट इन माइंड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। पहला एंट्री बताओ मुझे। टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री, कम ऑन। Equity share capital debit to what? Call in arrear to what? Share forfeiture. Is that right? Equity share capital to call in arrear to share forfeiture. Correct है? Sorted है? प्रीमियम था सब में? प्रीमियम होता तो हम लोग रूल अप्लाई करते, वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड। वो भी यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, पूरा फुल फ्लेजेड करने की जरूरत नहीं है। ओके, टेल मी एट व्हाट स्टेज आर यू डूइंग दिस forfeiture? At the end. So you'll multiply your capital with what price? 20, क्योंकि 20 से क्रेडिट हो चुका है, सबका बढ़ चुका है, सबको घटाने का है, तो 100 कैंसिल कर रहे हो, तो 100 into 20 कितना होता है? 2000 होता है, बराबर है? What do you write in call in arrear? जो पैसा उसने नहीं भरा, जो पैसा उसने नहीं भरा। क्या नहीं भरा है? फर्स्ट कॉल का 5 और सेकंड कॉल का 5। समझ आ रहा है सबको? तो 8 रुपीज उसने नहीं भरा है, तो 100 into 8 कितना होएगा? 800 से उसका CIA नलिफाई हो जाएगा, अभी आने वाला नहीं है एसेट नलिफाइड। हाउ मच वुड यू राइट इन forfeit? व्हाट इज दिस 1200? हड़पा हुआ पैसा जो उसने भरा है। तो उसने क्या भरा है? उसने क्या भरा है? उसने भरा है एप्लीकेशन एंड अलॉट में, उससे पहले का मसाला सब भरा है, बेसिकली 12 रुपया भरा है। तो वेरीफाई कर लो ना, 100 शेयर पे 12 रुपया भरा है, 1200 रुपया आ जाए। करेक्ट है? सिंपल। तो ये हो गया आपका फोर फीचर एंट्री। पूरा सम करने की जरूरत है क्या? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ट्रांसफर, ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, रिसीव, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा डायरेक्टली आप कर सकते हो। दिस इज फोर फीचर। एनी डाउट घर वाले यहाँ तक बताओ? घर वाले? ईशा, तानिया, रुतवा?
Sorted છે. હવે what next? After this we are reissuing. How many shares would you reissue? 80 equity shares only you are reissuing, right? Not 100, not 100, but only. तो 20 का क्या हुआ? बचे हुए फ्यूचर में रीइश्यू करो, बचे हुए फ्यूचर में, कोई मिला नहीं, कोई बकरा मिला नहीं, कोई नया शेयर होल्डर मिला नहीं, उसको रख दिया है. 80 वाला मिल गया तो उसको रीइश्यू कर रहे हो. क्या प्राइस पे कर रहे हो? 15 रुपया इज फुल्ली पेड अप. फुल्ली पेड अप मतलब अगेन एट दी एंड. अभी अभी आपको बोला फोर फीचर एंड में, तो रीइश्यू एंड में ही होगा. अच्छा, ये रीइश्यू एंट्री कितने शेयर्स की करनी है आपको? 80. एंट्री क्या बनेगी? बैंक शेयर फोर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अच्छा, ये पूरी एंट्री कितने शेयर के लिए करनी है? 80 के लिए. तो बैंक में क्या लिखोगे आप? 80 इंटू वॉट? 15 रुपया, तो 1200. अच्छा, कैपिटल में क्या लिखोगे? 80 इंटू 20, दैट इज 1600 फुल फेस वैल्यू. एंड फोर फीचर में लॉस, कितने का लॉस है? 4 रुपया, तो 400 रुपया. दिस इज री इश्यू, दिस इज री इश्यू. समझ में आया? इसके साथ ही फ्री वाली एंट्री क्या करनी है? शेयर फोर फीचर टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व, राइट? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये फ्री वाली एंट्री आपको करनी पड़ेगी. इज दिस क्लियर? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल, कैन यू डू 1200 minus 400 800? That be right? Why? That is for 100 shares, this is for 80 shares. Can you compare 80 का प्रॉफिट विद 100 का लॉस? सॉरी, 100 का प्रॉफिट विद 80 का लॉस. गलत हो जाएगा ना. अगर आप पूरा कर दोगे तो तकलीफ है. क्यों प्रॉब्लम है? फ्यूचर जब रीइश्यू होगा तब लॉस होगा. वो लॉस के लिए कौन सा अकाउंट चाहिए आपको एडजस्ट करने के लिए? शेयर फोर फीचर. अगर आप पूरा का पूरा क्रेडिट माइनस डेबिट करके कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो तो शेयर फोर फीचर खाली हो जाएगा. फ्यूचर लॉसेस के लिए बचेगा ही नहीं. तो ऐसा नहीं करना है. 1200 माइनस 400 बिल्कुल नहीं करना है. 1200 कितने शेयर का प्रॉफिट है? तो आप ढूंढो, क्या ढूंढो कि भैया 80 शेयर का प्रॉफिट कितना, ऐसा ढूंढने का. इक्विटी शेयर एंड शेयर फोर फीचर 100 शेयर का 1200, तो 80 का कितना? 960. समझा? 100 शेयर का 1200, समझा? ये 1200 is the profit for 100 shares. How much for 80? 960. So 960 is the profit minus 400. 960 minus 400 is how much? 560. 960 minus 400, 560. Is this clear? This is transfer entry. Share forfeiture transfer to capital. Did you get this? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ही ट्रांसफर होगा. अभी भी शेयर फोर फीचर में कितना बचा है बता सकते हो आप? शेयर फोर फीचर में कितना प्रॉफिट बचा हुआ है अभी भी? 240. वेरी गुड. कैसा 240? हमने क्या किया? 960 माइनस 400. अभी भी इसमें कितना क्रेडिट में पड़ा हुआ है? 240. 240 इज फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 20 शेयर. फ्यूचर में जब रीइश्यू करोगे तब वो लॉस कहां से एडजस्ट करोगे? 240 में से निकालो सर. 240 में से वो लॉस निकाल. हाँ बोल. How did you get 960? यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आपका 100 शेयर्स यहाँ पे आपने कैंसिल किया था ना, तो 100 शेयर का शेयर फोर फीचर कितना था? 1200. तो अपने हमने रीइश्यू कितना किया? 80. 80 का करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्रॉस मल्टीप्लाई 80 इंटू 1200 अपॉन 100. क्रॉस मल्टीप्लाई 100 शेयर का प्रॉफिट 1200 है, तो 80 का कितना? 960. तो 1200 माइनस 400 नहीं करने का, 960 माइनस 400 का. प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट यू ट्रांसफर. 240 रुपए अलग से रखो, फ्यूचर रेशियो में काम आएगा लॉस एडजस्ट करने के. लॉजिक समझा क्यों ऐसे किया? क्यों पूरा का पूरा कर देते तो क्या गड़बड़ हो जाती? फ्यूचर लॉस एडजस्ट करने के लिए फोर फीचर में पैसा बचता नहीं, राइट? जो रॉन्ग है, बचना चाहिए. टेम्पररी रिजर्व से ही एडजस्ट करना है. परमानेंट रिजर्व से आप फोर रीइश्यू का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, समझा अभी घर वाले? All of you clear with this example? Whenever ये लफड़ा कब आएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करना है बताऊं? लास्ट सम में क्यों नहीं किया? लास्ट सम में तो सबके सब रीइश्यू किए थे ना, वहां पर करने की जरूरत. यहाँ पर पार्ट रीइश्यू होता है तब भी करना. याद है लास्ट लेक्चर के लास्ट सम में भी किया था? 40 शेयर्स 3000 रुपए का 1200 रुपया. 3000
पूरा ट्रांसफर नहीं किया था, 3000 का 40 शेयर का प्रॉफिट, 1200 भी आप ट्रांसफर। सी द बी पॉइंट नाउ, Bhakti Limited forfeited 100 equity shares of 10 each, 6 called up, on which the shareholders had paid application and allotment of 5%. Of these, 80 shares were reissued as fully paid up for 16 per share. बहुत गम्मत वाला एकदम, ये वाला हो गया सबका। इसमें थोड़ा इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। क्या भैया? See, you have to read each and every point very carefully. What is given? See, Bhakti Limited forfeited 100 equity shares. ये तो सिंपल है, 100 shares उसने कैंसिल किए हैं। 6 called up. This is the biggest hint. 6 called up. मैंने बताया था called up paid up is what? Stage. वो stage की hint है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे शायद 6 होगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना होगा? 4 होगा। तो ये भाई ने 100 शेयर्स तो कैंसिल किए हैं, बट दे आर व्हाट? 6 कॉल्ड अप। व्हाट डू यू मीन बाय 6 कॉल्ड अप? यू आर forfeiting it at the end or in between? You are doing it in between. You are doing it in between. When are you doing it? 6 called up. When are you doing it? 6 called. 6 called up का मतलब अभी तक 6 रुपया ही मांगा है, आगे का 4 रुपया मांगा नहीं है। That is the meaning. देखो, ये 6 रुपए में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ भी हो सकता है, ये 4 रुपए में सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल कुछ भी हो सकता है। अपने को खाली बॉर्डर लाइन चाहिए कि कब हो रहा है। When are you canceling the shares? That is important. And whatever, गया भाड़ में, आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टर एप्लीकेशन, आफ्टर फर्स्ट कॉल, कब कर रहे हो वो गया भाड़ में। अपने ये पता होना चाहिए आफ्टर 6 रुपीज हो। 6 कॉल्ड अप मतलब 6 रुपए के बाद, 4 रुपए से पहले, 6 रुपए के बाद। इज दिस क्लियर? फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप होता तो व्हेन आर यू डूइंग इट? एट द एंड। अंदर का ब्रेकअप मारो गोली। आप क्या 4 फीचर एंट्री में लिखते हो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कितना है? कुछ नहीं, सीधा आप क्या लिखते हो? कैपिटल टू 4 फीचर टू कॉलिनरी। कौन पहले कितने पार्ट में क्या भरा, बाद में कितने पार्ट में क्या आने वाला है, क्या फर्क? समझ में आया? तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई कब कर रहे हो, एंड में कर रहे हो कि बीच में कर रहे हो? बीच में। यू आर कैंसिलिंग द शेयर्स इन बिटवीन। इज दिस क्लियर? तो 6 कॉल्ड अप 6 पेड अप मतलब आफ्टर 6 रुपीज। 8 कॉल्ड अप 8 पेड अप मतलब आफ्टर 8 रुपीज। fully called up, fully paid up मतलब after 10 rupees या 20, whatever is the face value. Sorted? अब पढ़ो आगे। On which the shareholders paid application and allotment of 5%. अब देखो, आप यहां कैंसिल कर रहे हो, कहां कर रहे हो? 6 रुपए के बाद, 6 रुपीज के बाद आप कैंसिल कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि भैया 6 रुपए तो पूरे भरे नहीं होंगे उन्होंने, कुछ तो नहीं भरा होगा, इसके लिए कैंसिल कर रहे हो। तो वही आपको दिया है, क्या भरा है उन्होंने? दे पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के कितना? 5। तो यहाँ पे क्या टाइम का लेक्चर? मैसेज कौन पढ़ेगा? ये सब तो पागल है, 9 बजे आके बैठे। तू ही हीरो है। 2 बजे आ अभी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं समझेगा उसको, इसके लिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भरा है उन्होंने 5 रुपया। क्या नहीं भरा होगा? 1 रुपया फर्स्ट कॉल का शायद नहीं भरा होगा, बराबर है? वो फर्स्ट और सेकंड कॉल भी हो सकता है, 98, वी डोंट नो। सो उसने 1 रुपया भी अज्यूम चलो कि भैया फर्स्ट कॉल का नहीं भरा। तो ये 6 रुपए के बाद ये करते हो ना आप, 4 फीचर इन बिटवीन आता माझी सटकली बीच में। तो बेचारे ने एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भी भरा। क्या पेपर देखो उधर ऑफिस में आया क्या? 1 मिनट। हाँ वही है, देखिए। तो listen now,
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 5 भरा है, एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा, 5 रुपया भरा, फर्स्ट कॉल पे शायद 1 रुपया रहेगा जो उसने नहीं भरा, तो कंपनी क्या एंड तक रुका? नहीं, कंपनी ने इधर ही उसका बैंड बजा दिया। तो 6 कॉल्ड अप में वी आर कैंसिलिंग द शेयर। ऑल ऑफ यू आर विथ मी? यहां तक क्या हो रहा है समझ में? ये 4 अभी तक मांगा नहीं है। आगे पढ़ो। ऑफ दीज 80 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप फॉर 16 पर शेयर। रीइश्यू तो किया है लेकिन 80 शेयर्स रीइश्यू, 80 शेयर्स रीइश्यू किया है, but 6 rupees is premium. And when are you reissuing the shares? At the end, not in between. At the end, what is the hint? How did you come to know that? Fully paid up, fully paid up, fully called up मतलब reissue कब हो रहा है? End में। फोर फीचर कब हो रहा है? Between। हमने पहला सम किया था, याद है वो? नाइन्थ सम, उसमें ऐसे ही किया था हमने, सम नंबर 9 नहीं सॉरी 10, जिया कंपनी, उसमें 4 फीचर इन बिटवीन था लेकिन रीइश्यू एट दी एंड था। इधर भी वही हो रहा है, कैंसिल कब कर रहे हो? बीच में, लेकिन रीइश्यू कब कर रहे हो? एंड में। हाँ बोलो भाई। यही तो बोला अभी, 6 रुपए में आप कैंसिल कर रहे हो, 6 में से उसने क्या भरा है? 5 पर शेयर। ना पैसा 5 पर शेयर हुआ तो 10 इधर ही हो गया। फाइव पर शेयर एप्लीकेशन ऑफ 5 पर शेयर अलॉटमेंट होता, 10 रुपया उधर ही खत्म हो जाता, तो फुली पेड हो जाता, खत्म ही। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के 5 रुपया पर शेयर, 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, ऐसा रहेगा। 2 रुपया इधर, 3 रुपया इधर, ये उसने भरा, 1 रुपया उसने नहीं भरा, इसलिए कंपनी ने इधर ही उसका शेयर फॉरफिट कर। बात समझ आई? तो यहाँ पे 2 चीजें हो रही है। नंबर 1, आप फॉरफिट कर रहे हो 100 शेयर्स और रीइश्यू कर रहे हो 80, जो आपने लास्ट एग्जांपल में देखा। दूसरा, फॉरफिट कर रहे हो यहाँ पर बीच में, लेकिन रीइश्यू कर रहे हो एंड में, सेकंड कॉल मांगने के बाद में रीइश्यू। तो एंट्रीज तो वही रहेंगे, अमाउंट थोड़े चेंज हो जाएंगे। देखना, फर्स्ट एंट्री बताओ मुझे क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल घटाओ टू व्हाट? कॉल इन अरियर टू शेयर। दिमाग में याद रखने का, व्हेन आर वी कैंसिलिंग? व्हेन, यहाँ पर कैंसिल करो, राइट? 6 कॉल्ड अप कैंसिल करो। कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6। जिस स्टेज पे कर रहे हो उस स्टेज पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है? सॉर्टेड से। कॉल इन अरियर में क्या लिखते हो? द मनी विच वी हैव नॉट रिसीव्ड, मनी विच वी हैव क्या नहीं भरा था इन मासूमों ने? ये 1 रुपया नहीं भरा था। 1 रुपया नहीं भरने से इनके शेयर की बैंड बच गई। 1 रुपया नहीं भरा था, वो होगा इनका कॉल इन अरियर 100 into 1, 100 रुपया। क्या भरा था इन्होंने? 500 रुपया, 5 रुपया भरा था, उसका कोई मोल नहीं बिचारे। 100 into 5, 500 कंपनी ने क्या किया? काट लिया, हड़प लिया। 500 रुपया भरा था, वो हड़प लिया। दिख रहा है आपको? बताओ मुझे, when did we cancel? 6 paid up, 6 called up, in between, right? उसमें क्या भरा था? 5 रुपया, 100 into 5 भरा था, ये 4 फीचर कर लिया, हड़प लिया। और ये 100 नहीं भरा था, ये 100 नहीं भरा था, ये कॉल इन अरियर। समझ में आया बात? ये मैच होगा ही, डायरेक्टली करो, लॉजिक से करो, ये एंट्री में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट ऑटोमेटिकली आने वाला। नेक्स्ट वन, रीइश्यू। कितने शेयर हो रहे हैं? 80 शेयर रीइश्यू रहे। तो पहले तो दिमाग को पता होना चाहिए कि 80 शेयर की रीइश्यू एंट्री करनी है, राइट? अब वो 80 शेयर कब रीइश्यू कर रहे हो? आर यू डूइंग इट आफ्टर दिस फर्स्ट कॉल और एट द एंड? यू आर डूइंग द रीइश्यू एट द एंड, not after first call. How do you recognize that? Fully paid up, fully called up, fully paid up, fully called up चाहिए, मतलब you are not reissuing it in between, you are doing it at the end. What is the face value of shares now at the end? मतलब 10, और 10 का शेयर क्या प्राइस पे रीइश्यू हो रहा है? 16। तो गेन है कि लॉस?
कितने का गेन है? 6 रुपया फेस वैल्यू के ऊपर मिल रहा है आपको, वो कहाँ कौन से अकाउंट में जाता है? एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? शेयर प्रीमियम अकाउंट। बराबर छे। बताया था, याद है? अंदर का लॉस कम वाला है तो फोरफीचर, लेकिन ज्यादा वाला है तो प्रीमियम। हाँ ना, कहीं तो बोल, हाँ मत જોઈ જવાનું અને જોઉં દેખાય છે। હવે જો बैंक शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, ठीक है? बताओ मुझे, बैंक 18 टू व्हाट? 16 वेरी गुड, 18 टू 16 1280। कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 18 टू 6 या 18 टू 10? 18 टू 10 बिकॉज यू आर डूइंग इट एट द एंड। तो कॉल वॉल मंगवाने के बाद एंड में किया 18 टू 10, 800 रुपया। और आपका ये कितना होगा प्रीमियम? 18 टू 6, 480 रुपीज का प्रीमियम है, प्रॉफिट। अच्छा, अगर रीइश्यू यहाँ पे किया होता तो कैसे पता चलता? क्वेश्चन देख के क्या बताते वहां पे? 6 कॉल्ड अप या 6 पेड अप। रीइश्यूड है 6 कॉल्ड अप 6 पेड अप दिया होता ना, देन इट वुड हैव बीन आफ्टर फर्स्ट एट दिस स्टेज, then you would have multiplied your capital with 6 and your premium with 10 because 16 में किया, तो 6 का 16 में किया तो प्रीमियम 10 रुपया होगा। बात समझ आई? 6 का 16 में किया है ना, वो तो भरेगा ही बाद में अलग से। रीइश्यू प्राइस अगर 16 होता तो 6 रुपए का शेयर तुम 16 में दे, 20 रुपया भर रहे हो। एट प्रेजेंट 10 रुपया प्रीमियम, 6 का 16 में हुआ। चलो ये वाला क्लियर पहले सबको? હવે કરવાનું છે, કરવાનું? હા તો કર આરામથી। હા થઈ ગયું પહેલા? આમાં કોઈ डाउट? यहाँ पे 100 कैंसिल किए, यहाँ पे 80 रीइश्यू किया। इधर 100 कब कैंसिल किए थे? आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर। 80 कब रीइश्यू है? आफ्टर। जैसे रीइश्यू किए वो मुफ्त वाली एंट्री करनी है आपको, शेयर फॉर फीचर टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व। अच्छा, कैन यू ट्रांसफर डायली 500 माइनस नील तो 500? व्हाई? दिस इज हाउ मेनी शेयर्स का प्रॉफिट? अपने को कितने का चाहिए? तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये शेयर फॉर फीचर, ये इक्विटी शेयर। अगर 100 शेयर का प्रॉफिट 500 है तो 80 का कितना? 400, राइट? 400। 400 माइनस कुछ लॉस नहीं है, तो कितना ट्रांसफर करने का? कुछ लॉस होता तो माइनस करके करने का, नहीं है वैसे। समझ में आया कि नहीं? ओके, सेम। तो फुली पेड अप, फुली कॉल एट द एंड। अच्छा, पेड अप कॉल्ड अप नहीं पता है तो क्या अज्यूम करने का? कब किया है? एट द एंड। कुछ नहीं दिया है तो ऑलवेज एट द एंड। ओके, बढ़ो आगे। थर्ड केस पढ़ो, थर्ड केस। कोनार्क लिमिटेड forfeited થઈ ગયું, સુઈ જા। કોનાર્ક લિમિટેડ forfeited 50 equity shares of 10 each, 8 called up। ऐसे कान खड़ा होना चाहिए। 8 called up मतलब क्या? You are doing it after 8 rupees, not at the end। The shareholder failed to pay first call of 3 rupees। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, 10 रुपए का शेयर है, 8 कॉल्ड अप, तो ये सब मिला के कितना होगा? 8, और 2 रुपया अभी भी मांगना बाकी है, तो कैंसिल कब कर रहे हो? यहां कर। 8 कॉल्ड अप मतलब यहां कर। बात समझ आई? और क्यों कर रहे हो? ऐसे ही कर रहे हो? उसने कुछ तो नहीं भरा है। क्या नहीं भरा है उसने? 3 रुपया इधर नहीं भरा है, तो शायद 5 रुपया उसने भरा होगा। या एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ भी होने दो, ये फर्स्ट कॉल होने दो। तो भैया उसने 3 रुपया नहीं भरा, 5 रुपया भरा, और 3 न भरने के वजह से इस स्टेज पे आप उसको कैंसिल कर रहे हो। बात समझ आई? अब आगे पढ़ो। लेटर ऑन 30 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 rupees per share। लेटर ऑन 30 पर शेयर, 30 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 per
शेयर। अब मुझे बताओ रीइश्यू कब हो रहा है, इन बिटवीन और एट द एंड? दिया है वहां पे, दिया 8 कॉल्ड अप रीइश्यू किया है, तो मतलब यू आर डूइंग इट एट द एंड, यू आर डूइंग इट एट द एंड। इज दिस क्लियर? रीइश्यू कब कर रहे हो? एट द एंड। फोर फीचर कब कर रहे हो? इन बिटवीन। काहे फोर फीचर कर रहे हो? क्या नहीं भरा उसने? फर्स्ट कॉल 3 रुपया नहीं भरा, कितने से फोरफीट कर रहे हो? 50। और रीइश्यू कर सकते हो खुद से ट्राई, चलो करो करो। तीन एंट्रीज का When yes, we forfeit the shares in between, but when we reissue it either in between or at the end, we always consider the face value now for equity share capital. yes, face If value, it's 10, so it's 10. called up value. Called up value you have to do. If you are doing it in between, you multiply your capital by 8. If you are doing it at the end, you multiply your capital by 10. Called up value. Always. Sir, later on Eight. means at the end, right? एक मिनट, sorry, what Priya? Later on means at the end, right? Later on means भी at the end, और कुछ नहीं दिया है, 8 called up, 8 paid up, तो फिर भी assume करने का at the end. समझा? 8 called up, 8 paid up दिया तो फिर in between, कुछ नहीं दिया तो fully called up, fully paid at the end. हो गया? Finished. टेस्ट पेपर्स लेते जाना, performance is better compared to the previous tests, but still no one is in single digit, that's good. सर बोलो बोलो। सर कल वैसे भी हैव टू राजीव सर का क्लास है, फिर कॉलेज है, तो 12 बजे कहना है पिकअप द चलेगा पेपर। चलेगा। ओके, तो 12 o'clock यू आर देयर राइट, क्योंकि 12 बजे कॉलेज खत्म होगा। हाँ थैंक यू सर। चलो ट्राई करो फटाफट। हो गया क्या तुम लोग का? करना फटाफट, बाद में बात करें। राहुल ठक्कर, तो इको ऑनलाइन बैठा था, इको ऑनलाइन बैठा था। थैंक यू रेडिया, थैंक यू थैंक यू। कैपिटल 10 एंड मारी इशू। कैपिटल का है ना, फिक्सेशन कर लो दिमाग में। कैपिटल को किससे मल्टीप्लाई करना है? स्टेज से। स्टेज कैसे पता चलेगा? कॉल्ड अप या पेड? सिंपल। सर ये कौन सा सम है? अरे थर्ड वाला अभी जो दिया वही कर, खुद से करने दिया ना अभी, सी वाला पार्ट। यस यस।
$60 is your final answer. Did you get this? 60 rupees आना चाहिए. बोलो. आया कि नहीं दिनोजा? समझा सबको? आया आंसर खुद से? नहीं समझ में आया तो पूछो फटाफट. गेटिंग इट? करो करो. यांशी को मिला? पता नहीं मिला है वो. यादव. अरे रोहन सर का था ना 840, 830, 845. बीच में नहीं तो बड़ा गैप हो जाएगा तुम लोग को. सो जाओगे. अभी से रोज 9 बजे रहेगा ना क्लास. MWF 9 o'clock यार. MWF 9 o'clock and 2 o'clock. Wednesday it will be 1 o'clock. Today it is 2 o'clock. चलो हुआ. घर वाले आ रहे हैं क्या? 60 रुपीज बोलो मेरे को. नहीं आ रहा है तो I'll explain. Come on. मेहता ने वो आंसर है वो 5 मिनट वाली. भांग पी क्या है? Sum number 32. All of you take sum number. Sorry, 33. Sum number 33. 33. 33. Page number 133. Sum number 33. Dhananjay Electronic Company Limited forfeited 500 equity shares of 10 each, on which 6 per share were received. अभी आगे पढ़ो. Show journal entries regarding reissue if all the shares, reissue of all the shares if the shares are reissued at 8 per share fully paid up, shares are reissued at 7 rupees 8 called up, and shares are reissued at 5.5 7 called. तो पहले फोरफीट कर रहा है वो. अच्छा, फोरफीचर कब हो रहा है? फुल्ली पेड अप फोरफीट हो रहा है आपका. एंड में फोरफीट हो रहा है. बराबर है. फुल्ली पेड अप फोरफीट हो रहा है. तो कैन यू रीइश्यू इट इन बिटवीन? पॉसिबल. लेकिन इधर दिया एग्जांपल. ये हमारा मान गवर्नमेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट. ठीक है, आपको एंट्री करना पड़ेगा. प्रैक्टिकली इट इज नॉट. हो सकता है कि आप फोर फीचर कैंसिल एट द एंड कर रहे हो और बीच में रीइश्यू कर. इज इट पॉसिबल? नो. लेकिन इधर दिया है तो आपको वैसा सम करना पड़ेगा. चॉइस नहीं आपके पास. 33rd सम देखो सब लोग ध्यान से. बताओ मुझे व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ दिस 10 रुपीज. 6 and 4. कितना पैसा भरा है उसने? 6 रुपया भरा है. पूरा यहां तक भरा है और यहाँ पे ये 4 रुपया शायद नहीं भरा होगा. तो कैंसिल क्या कर रहे हो? यहाँ कर रहे हो कि एट द एंड कर? 6 पे कैंसिल कर रहे हो कि एट द एंड कर रहे हो? हाउ कैन यू कैंसिल एट 6 जब उसने सब कुछ भरा है? सब कुछ भरा है तो क्या ऐसे कैंसिल कर देने का? कुछ नहीं भरा है तो कैंसिल करोगे? तो बोलने का मतलब 6 रुपया मिला है, 4 रुपया नहीं मिला. तो when are you doing it? When are you doing the cancellation? At the end. ऐसा नहीं है कि 6 में से 4 नहीं मिला. Are you getting that? 6 per share ये मिल चुका है.
और 4 रुपया फाइनल कॉल का उसने नहीं भरा, तो आपने कब कैंसिल किया? एट द एंड। बात समझ आई? So when are we doing the forfeiture? Not in between, but at the. Why not in between? Tell me, is it possible? Why not possible? 6 तो भरा है, 6 तो भरा है ना. He paid 6. He paid 6. So why the hell you will cancel after 6? भरा उसका फाइन, उसका पेनल्टी. ऐसा नहीं होता. ठीक है? तो 6 रुपया बेचारे ने भरा है, 4 रुपया नहीं भरा है, तो वी आर कैंसिलिंग इट एट दी एंड. नाउ रीड फॉर. पहले तो फोर फीचर एंट्री कर दो, फिर 3 अलग अलग केस की रीइश्यू और ट्रांसफर एंट्री करते हैं. देखो, सबसे पहले फोर फीचर एंट्री. व्हाट इज योर फोर फीचर एंट्री? इज देयर एनी प्रीमियम? बोलो, है क्या? तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? कॉल इन अरियर टू शेयर फोर फीचर. बताओ मेरे को, कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10 कि 6? 10. At the end, how many shares are you cancelling? 500 into 10, 5000. How much in call in area? क्या नहीं भरा उसने? बोलो. 4 रुपया. 2000. 6 तो भरा है ना भाई ने, 4 नहीं भरा, इसके लिए तो कैंसिल कर रहे. और 500 into 6, 3000. That is फोर फीचर. ये हो गया फोर फीचर एंट्री आपका. अब आपको 3 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं. उन 3 अलग अलग केस, तीनों केसेस इंडिपेंडेंट है. ऐसा नहीं कि तीनों साथ में हो. इट इज नॉट पॉसिबल. ऑल द 3 केसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है? कीप दैट इन माइंड. केस 1, व्हाट इज हैपनिंग इन केस 1? रीइश्यूड एट 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप. म्हणजे काय? फुल्ली पेड अप म्हणजे काय? फुल्ली पेड अप मतलब एट द एंड. एंड में रीइश्यू किया है, लेकिन क्या प्राइस पे रीइश्यू किया है? 8. 10 का शेयर 8 में, 2 का प्रॉफिट की लॉस. लॉस. एंट्री फॉर रीइश्यू क्या बन जाएगा? बैंक शेयर फोर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि लॉस है. बताए लॉस है तो बैंक शेयर फोर फीचर टू कैपिटल. व्हाट इफ प्रॉफिट होता? तो शेयर प्रीमियम आ जाता. प्रॉफिट होता तो यहाँ पे 10 का शेयर 8 में जा रहा है, 8 में रीइश्यू किया. कितने शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो? सब, ऑल. तो 500 into 8, 4000. इधर कितना आएगा? 500 into 2, 1000. और इधर कितना आएगा? 500 into 10, 5000. कैसे पता चला एंड में रीइश्यू हो रहा है? कैसे पता चला एंड में रीइश्यू हो रहा है? फुल्ली पेड. फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप मतलब एट दी एंड. समझ रहा है सबको? अब इसी के साथ एक और एंट्री चिपकानी है आपको. व्हाट इज दैट? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व. आर वी रीइश्यूइंग ऑल द शेयर्स? सो कैन वी कंपेयर सब शेयर का प्रॉफिट माइनस सब शेयर का लॉस? ये कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है? नहीं है? आर यू श्योर? तो 500 शेयर का प्रॉफिट 3000 माइनस 500 शेयर का लॉस 1000, तो हाउ मच वुड यू टेक? 2000. Simply minus 3 minus 2, 3 minus 1. 3 minus 1 is what you transfer. 3 minus 1 is what you transfer. Is this clear? बताओ. कंफर्टेबल यहां तक? सॉर्टेड है. હવે જો નેક્સ્ટ કેસ વાંચો. નેક્સ્ટ કેસ, what is given in the next case? Shares are reissued at 7 rupees, 8 called up. इसका मतलब क्या? बीच में रीइश्यू हो रहा है. As what called up? 8 called up. 8 called up आप रीइश्यू कर. कैसा called up कर रहे हो? तो फोर फीचर एंट्री स्टिल सेम, बट ओनली रीइश्यू एंड ट्रांसफर एंट्रीज विल चेंज. अभी 8 called up है. अच्छा, हाउ मेनी शेयर्स आर यू रीइश्यूइंग? ऑल 500. 8 कॉल्ड अप मतलब कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होगा? 8 रुपए से. और 7 रुपीज में किया है, तो 1 रुपी का लॉस हो गया आपका. एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक शेयर फोर फीचर टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल. दिस इज डायरेक्टली रीइश्यू एंट्री. हेलो, फोर फीचर एंट्री में कोई चेंज
नहीं है, खाली रीइश्यू और ट्रांसफर एंट्री कर रहा हूँ, रीइश्यू एंड ट्रांसफर। मुझे बताओ बैंक को कितने से मल्टीप्लाई? 7 ₹7 आ रहा है, 3500। आपका कैपिटल में आएगा 500 into 8, that's 4000. Why did I multiply it by 8 and not 10? Why did I multiply by capital by 8 and not 10 rupees? 8 कॉल्ड अप है ना इसमें। 8 कॉल्ड अप मतलब 8 रुपया कैपिटल में किया। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 10 रुपए का फोरफीट कर रहे हो, 8 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो, बोलो। हाँ, तो ये फोरफीचर एंट्री अलग थी, करवी पड़े, पूछी જ નથી। પાસ રીઇશ્યુ એન્ટ્રીઝ એન્ડ ટ્રાન્સફર એન્ટ્રીઝ પૂછી ગઈ છે। ફોરફીચર બધાની કોમન જ લેવાની છે। ત્યાં જો કીધેલું છે ત્યાં જો ને, શો જર્નલ એન્ટ્રીઝ રિગાર્ડ। अच्छा, तो એમ કે છે કે અહીંયા આમ અઝ્યુમ કરી શકે। હા, કરી શકે, બરાબર। હા હા, તો પછી પોસિબલ, પણ સમ એવી રીતે ફ્રેમ કરેલું છે કે આ કોમન રાખો અને આની ચેન્જ કરતા રહો, એમ કીધું। सर फोर फीचर की एंट्री पूछी ही नहीं है। हाँ, फोर फीचर की पूछी ही नहीं है, वही खाली रीइश्यू और ट्रांसफर। फोर फीचर का खाली इतना ही बोला है अपने, 6 पर शेयर। तो ऐसा अज्यूम कर सकते हो आप दिमाग में कि भैया सेकंड फोर फीचर में आपने 8 रुपए में कर दिया, ऐसा कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का सम। What will be your transfer entry now? Tell me. Share forfeiture to capital reserve. How much would you transfer? आपका प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 3000। यहाँ से ही लेना पड़ेगा प्रॉफिट, माइनस लॉस 500। क्या आप 3000 माइनस 500, सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस, कैन यू डू दैट? कर सकते हो ना? तो क्या हो गया? शेयर्स तो सब रीइश्यू कर रहे हो ना? आर यू रीइश्यूइंग 300 शेयर्स आउट ऑफ 500? आर यू रीइश्यूइंग 400 शेयर्स आउट ऑफ 500? आर यू रीइश्यूइंग 200 शेयर्स आउट ऑफ 500? हाउ मेनी शेयर्स आर यू रीइश्यूइंग? ऑल। तो 500 का प्रॉफिट माइनस 500 का पूरा यू कैन डू इट। तो 3000 माइनस 500, हाउ मच डू यू? 2500 rupees. Is this clear? Got that? केस 3 बताओ मुझे, केस 3 में shares are reissued at 5.57 called up. Shares are reissued at 5.57 called up. 5.5 में 7 called up reissue किया आप। तो पहले तो कितने शेयर्स reissue किए हैं? फुल 500 किए हैं। एंट्री क्या होगी? बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर है। हाउ मच विल मल्टीप्लाई योर बैंक शेयर? 500 into 5.5, that comes to 2750. How much will write in capital? Oh, 500 into 7. Why 7? 7 called up. 7 called up reissue किया है। How much in forfeiture? कितना होता है? 1.5, 750. And वो मुफ्त वाला एंट्री, शेयर फॉर फीचर to capital reserve, how much will you transfer? Bolo. Can you compare 3000 with 750? Why? All the shares you have reissued, all the shares you have reissued. सबका profit minus सबका loss, 3000 minus 750, that comes to 2250. 2250. 3000 minus 750. कर लो। हाँ बोलो मैडम। हाँ बल ओके ओके। सॉर्टेड ये वाला कॉल्ड अप पेड अप समझ में आ रहा है? ट्रांसफर समझ में आ रहा है? कब आप पूरा अमाउंट कर सकते हो क्रेडिट माइनस डेबिट? व्हेन यू रीइश्यू ऑल द शेयर, बट व्हेन यू रीइश्यू ओनली हाफ, इसका भी हाफ प्रॉफिट माइनस हाफ का लॉस।
पूरे का प्रॉफिट माइनस पूरे का लॉस तभी जब सबके सब शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो तो सॉर्टेड. नेक्स्ट वन, सी सम नंबर सम नंबर 28 किया ना हमने. 28 आज ही किया ना. ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 16. 16. Come on. 16th sum. All of you take sum number 16. नहीं. टोल के कंपनी लास्ट सम नहीं है भाई. टोल के कंपनी लिमिटेड issued 4,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share. Can you see that? Tolke Company Limited issued 4,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share payable as under. 10 का शेयर आपने 2 रुपया प्रीमियम पे इश्यू किया तो क्या प्राइस पे इश्यू किया है? 12 रुपए में. अब आगे पढ़ो. Now on application 2 rupees, allotment 5 including premium. So what is the breakup? This is 2, this is 5. 5 में it is 3 plus 2. What is first call? I think 3 and final call it is 2. बराबर से चेक कर लो टोटल आ रहा है क्या? बराबर है. 2 plus 5 7 plus 3 10 plus 2 12. बराबर. 4,000 शेयर्स का इशू था. मिस्टर पंकज वाज अलॉटेड 80 शेयर. पंकज भैया के 80 शेयर्स थे. बराबर है. Give necessary journal entries relating to forfeiture of shares in each of the following alternative cases. सिर्फ forfeiture की एंट्री करनी है. रीइश्यू की भी नहीं करनी है, ट्रांसफर की भी नहीं करनी है, खाली forfeiture. तो तीनों केस में एक ही एंट्री आएगी. केस 1, केस 2 और केस 3. All the 3 cases you have to just pass one entry. What is that one entry? बस सिर्फ एक forfeiture की एंट्री करनी है. forfeiture का फॉर्मेट आपको मालूम है एंट्री का? What is the format? विथ प्रीमियम है. विथ प्रीमियम तो क्या लिखने का पहले एंट्री में? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट. देन व्हाट? शेयर प्रीमियम को करके रखो भैया पहले डेबिट, फिर देखेंगे रूल अप्लाई करके. टू कॉल इन अरियर टू व्हाट? शेयर forfeiture. दूसरे में भी लिख लो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट, टू कॉल इन अरियर, टू शेयर forfeiture. तीसरे में भी सेम एंट्री है. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट, टू कॉल इन अरियर, टू शेयर forfeiture. एंट्री तो सेम ही रहने वाली है ना forfeiture. विथ प्रीमियम है तो प्रीमियम को डेबिट करके रखो, फिर रूल अप्लाई करो. और विदाउट प्रीमियम है तो हटा दो. कैपिटल टू सीआईए टू forfeiture कर सकते हो आप. पहले तीनों केस का एंट्री लिख के रख दो, फिर अमाउंट्स फिलअप करते वन बाय वन धड़ाधड़. Only forfeiture entry in all the 3 cases. अच्छा, all the 3 cases are mixed up or independent? Independent. तीनों केस अलग है. पहला हो गया तो भूल जाने का, सेकंड को फोकस करने का, सेकंड हो गया उसको भूल जाने का, थर्ड पे फोकस करना. All the 3 cases are independent. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. अरे
नहीं खाली 4 फीचर, ओनली 4 फीचर, ओनली 4 फीचर, नो reissue, नो ट्रांस, ओनली 4 फीचर, नहीं आउटसाइड। देखो क्या दिया है, पढ़ो फर्स्ट वन, केस 1 पढ़ो सब। इफ मिस्टर पंकज failed to pay the allotment money and his shares were forfeited. If Mr. Pankaj failed to pay the allotment money and his shares were forfeited, so when are you canceling? After allotment, इधर ही उड़ा दिया उसको। If Mr. Pankaj failed to pay the allotment money and his shares were, फर्स्ट और सेकंड कॉल का वाट नहीं देखा, उधर का उधर ही कैंसिल किया। So when are you canceling this? After allotment, right? आफ्टर अलॉटमेंट यू कैंसलिंग। तो कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करने का, 2 + 5 की 2 + 3? व्हाई नॉट 2 + 5? 2 रुपया प्रीमियम। व्हाट इफ यू डू इट एट द एंड, विल मल्टीप्लाइड बाय 10? व्हाट इफ यू डू इट आफ्टर फर्स्ट कॉल, विल मल्टीप्लाइड बाय 8, 10 - 2? व्हाट इफ यू मल्टीप्लाइड आफ्टर you cancel it after allotment, you do 10 - 2 - 3, that is कैपिटल में प्रीमियम लेने का प्रीमियम रिजर्व है, कैपिटल कैपिटल है, फेस वैल्यू दोनों अलग अलग रखने का। कैपिटल जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट, प्रीमियम जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट, दोनों अलग है। कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करोगे केस 1 में? 80 × 5। पहला केस ध्यान से सुनो, पहला केस में सबने एप्लीकेशन भरा, पंकज ने भी भरा। सबने अलॉटमेंट भरा, पंकज ने नहीं भरा, पंकज ने नहीं भरा, इसीलिए तो आफ्टर अलॉटमेंट कैंसिल कर रहे हैं। अगर उसने अलॉटमेंट भरा होता तो क्या कैंसिल कर दे? भरने का भी कैंसिल। समझा क्यों कैंसिल कर रहे हो आफ्टर अलॉटमेंट? क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं भरा। अच्छा, तो पहले कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होगा? 5 से, क्योंकि 5 से क्रेडिट हुआ है, 5 से डेबिट करो, नलिफाई करो तो कितना आएगा? 400। अच्छा, प्रीमियम का रूल क्या है? वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, बट नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड। डिड पंकज पे अलॉटमेंट? इफ यू डिड नॉट पे अलॉटमेंट, डिड ही पे प्रीमियम? इफ यू डिड नॉट पे प्रीमियम, डिड वी रिसीव प्रीमियम? प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, बट नॉट रिसीव्ड, क्या प्रीमियम डेबिट करना है? प्रीमियम रिजर्व में दिख रहा है लेकिन उसके सामने पैसा, याद है हम प्रीमियम थर्ड एंट्री में क्रेडिट करते हैं, ड्यू सबका क्रेडिट करके रखा है, इसका भी क्रेडिट करके रखा है, लेकिन साले ने पैसा नहीं दिया। तो रियल प्रॉफिट और फेक प्रॉफिट? फेक प्रॉफिट। नहीं भरा है तो डेबिट करना पड़ेगा, फेक प्रॉफिट। 80 × what? 160 रुपीज टू कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर भाई ने क्या नहीं भरा? ये 5 रुपया नहीं भरा है। कॉल इन अरियर में कोई भेदभाव नहीं है, प्रीमियम का नहीं भरा कि कैपिटल का नहीं भरा कि फलाना नहीं भरा कि डिम का नहीं भरा। कॉल इन अरियर मतलब पूरा जो पैसा उसने नहीं भरा है। कॉल इन अरियर मतलब जो भी पैसा उसने, दैट इज कॉल इन अरियर। क्या नहीं भरा है? 5। तो 80 × 5, 400। व्हाट डिड दिस पुअर गाय पे? Literally poor. He paid only application का 2 rupees. He paid only application का 2 rupees और भाग गया। तो 2 × 80, 2 × 80, that is 160. Is this clear? या आप पहले 160 लिखो तो 400 अपने आप मिल जाएगा, 400 लिखो तो 160 अपने आप मिल जाएगा। दोनों को लॉजिक से करो, दोनों मिल जाएंगे। Is this clear? कॉल इन अरियर में कौन सा पैसा रहता है? जो पैसा उसने नहीं भरा। और 4 फीचर में जो कैपिटल की तरफ भरा, हड़पा। फर्स्ट वाला क्लियर? केस 1 इज क्लियर। भाई ने एप्लीकेशन भरा था, अलॉटमेंट नहीं भरा था, इसलिए उसका शेयर कैंसिल किया। रीड सेकंड केस। केस 2, मिस्टर पंकज failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited. अभी अलॉटमेंट नहीं भरा, एक डायरेक्टर भागते भागते यार इसने अलॉटमेंट नहीं भरा, चलो शेयर कैंसिल करते। चेयरमैन ने बोला रुक जा, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा वेट करो, देखते हैं। फिर फर्स्ट कॉल नहीं भरा, वापस डायरेक्टर आया भागते भागते, सर अभी तो कैंसिल करते हैं। बोला चलो करते, अभी ज्यादा हो गया।
अभी ज्यादा हो गया, अभी कैंसिल करते हैं. सो अलॉटमेंट नहीं भरा लेकिन ताबड़तोड़ कैंसिल नहीं किया. we waited till what? First call. We waited till first call. So when are we cancelling the shares? After first call. But what he did not pay, उसने क्या क्या नहीं भरा, अलॉटमेंट भी नहीं भरा, और लेकिन कैंसलेशन इज नॉट आफ्टर अलॉटमेंट, इट इज आफ्टर फर्स्ट. तो कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए? 2 + 5 7 + 3 10, राइट? प्रीमियम नहीं लेने का. 2 + 3 5 + 3 8. कैपिटल को कितने से करना है? 8. डू नॉट टेक प्रीमियम. घाई में प्रीमियम ले लोगे गड़बड़ हो जाएगी. कैपिटल घटा, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट. 8 से क्रेडिट हुआ है, 8 से डेबिट. 10 से कैपिटल क्रेडिट हुआ ही नहीं, 8 से ही हुआ. 2 रुपए से प्रीमियम क्रेडिट हुआ. गॉट इट? सो 8 से बढ़ा था, 8 से घटाया. व्हाट अबाउट प्रीमियम? वंस रिसीव, नॉट रिसीव. Did this guy pay the allotment? So did he pay the premium? Did we receive the premium? No. Fake profit. क्या करने का? डेबिट करने का ही करने का. तो 80 × 2 160. Sorted. Call in arrear. उसने क्या नहीं भरा? क्या नहीं भरा? ये 5 और ये 3. 8 रुपया नहीं भरा. तो 80 × 8 कितना होता है? 640. और क्या भरा बेचारे ने? अगेन यही भरा है, एप्लीकेशन का 2 रुपया. 80 × 2 दैट इज 160. ये भरा. समझा? गेटिंग इट? ऑल ऑफ यू क्लियर? लास्ट वाला पढ़ो क्या दिया. केस 3. इफ मिस्टर पंकज failed to pay the first call and on his subsequent failure to pay the final call, his shares were forfeited. अब गम्मत, पंकज ने पहले एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भी भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा. तो डायरेक्टर भगते भगते आए, चलो कैंसिल करते हैं. चेयरमैन बोला फर्स्ट कॉल के बाद नहीं करते, अभी अभी केस 2 किया है, फर्स्ट कॉल के बाद नहीं करते. तो रुक गए. फिर उसने फाइनल कॉल वापस डिफॉल्ट किया, वापस नहीं भरा, वापस डायरेक्टर भागता क्या, अभी कैंसिल करते हैं, अभी करना ही है, अभी तो लास्ट स्टेज आ गया, अभी तो कैंसिल करना ही है. तो व्हाट इज हैपनिंग इन केस 3? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? पंकज पेड एप्लीकेशन. पंकज ऑल्सो पेड, he did not pay, but still company did not lose the temper. They cancelled the shares after second call. So पहला कॉल भी नहीं भरा, सेकेंड कॉल भी नहीं भरा, उसके बाद आप कैंसिल करो. बात समझ आई? अब कहाँ कैंसिल करो, कब कर रहे हो? आफ्टर अलॉटमेंट कर रहे हो, आफ्टर फर्स्ट कॉल करोगे, आफ्टर फाइनल कॉल करो? आफ्टर फाइनल कॉल. यू आर कैंसिलिंग इट एट द एंड स्टेज, लास्ट स्टेज. सो हाउ मच विल मल्टीप्लाई कैपिटल विद? 80 × 10. पूरे से क्रेडिट हुआ, पूरे से डेबिट करो, राइट? प्रीमियम का रूल क्या है? वंस रिसीव should not be debited, not received should be debited. Ask your antaratma, did Pankaj pay allotment? So did he pay premium? Did we receive premium? Is it a genuine profit? Credit में profit, debit में bank, genuine profit. तो debit करने की जरूरत, cancel करने की जरूरत नहीं है. तो will we write anything in premium? Nothing, nil. Call in arrear, जो पैसा उसने नहीं भरा. क्या क्या नहीं भरा? देखो, ये 2 रुपया नहीं भरा है और ये 3 रुपया नहीं भरा है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा है, बराबर है कि नहीं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा है ना. तो 80 × 5 रुपया नहीं भरा, 400. अच्छा, और फीचर में क्या लिखते हो? जो पैसा उसने कैपिटल की तरफ भरा है. देखो, भरा तो उसने कितना, बोलूं? 2 + 5 7. क्या यहाँ पे 7 लिखोगे? क्या कितना लिखोगे? 5. कैपिटल की तरफ हड़पाओ. व्हाट अबाउट प्रीमियम? क्यों प्रीमियम का नहीं लिया मैंने यहाँ पे? बोलो. ऑलरेडी आ चुका है. प्रीमियम का पैसा क्रेडिट होके बैंक में पड़ा हुआ है, आपको उसको हाथ लगाने की जरूरत. आपने हड़पा तो 7 ही रुपया है, वैसे 2 प्रीमियम में पड़ा, 5 फोर फीचर. समझ आई? ऐसा है.
आखिरी सम, सर बस में आज के लिए बस अभी सर साइलेंस। बहुत लोग, 8 लोग था क्लास में, मैंने देखा क्या देखो वो आईपीओ वाला वीडियो, वॉरेन बफेट वाला, देखा कि नहीं? हाँ, चलो लास्ट सम नंबर 32 खुद से करना है आपको, 5 मिनट सम इट इज। सम नंबर 32। नहीं देखो, देर आर 2 प्रॉब्लम्स, 2 छोटू प्रॉब्लम इन वन। उसमें खाली 4 फीचर रीइश्यू ट्रांसफर करना है। देखो मैं पहला डिस्कस करके देता हूं। ए पॉइंट पढ़ो, प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी forfeited 100 equity shares, 32 सम नंबर 32। प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी forfeited 100 equity shares of 100 each due to non-payment of final call of 30 rupees, and the same were reissued at 50 per share fully paid up. So when are we forfeiting? At the end. And when are we reissuing? At the end. And are we reissuing all the shares? Can you? सब तो रीइश्यू किया है, 100 शेयर कैंसिल किया और 100 शेयर रीइश्यू किया है। व्हाट दिस इज, जनता स्लीपिंग और व्हाट? समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 शेयर्स कैंसिल किया और 100 का 100 शेयर रीइश्यू हुआ है। रीइश्यू प्राइस क्या है? 50 रुपया। और स्टेज क्या है रीइश्यू का? एट दी एंड। क्या भरा क्या नहीं भरा समझ में आया? 100 रुपए में क्या भरा क्या नहीं भरा? 100 रुपए में भाई ने क्या भरा था क्या नहीं भरा था, बोलो। 30 नहीं भरा, 70 रुपया भरा, तो इसलिए कैंसिल किया लास्ट में उसका शेयर और 50 रुपए में रीइश्यू किया। बात समझ आई? पढ़ो, दूसरा पढ़ो। स्वानंद ट्रेडिंग कंपनी forfeited 1000 equity shares of 10 each on which application money 2 and allotment 4 were paid. 6 रुपया भरा था। First call money of 2 per share remained unpaid. The company reissued all the forfeited shares at 5 per share, 8 paid up. तो पहला लाइन पढ़ के बताओ, when are you forfeiting? वापस पढ़ो, वो स्वानंद वाला लाइन पढ़ो। When are you forfeiting? After first call। कैसे पता चला? वो तो रीइश्यू का दिया है, तो 4 फीचर के बारे में तो कुछ दिया नहीं है। कैसे पकड़ा आपने फर्स्ट? हाँ देखो, स्टोरी पूरा दिया हुआ है। एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा, फर्स्ट कॉल, 8 कॉल्ड अप ही आपने फोरफिट किया। तो फोरफिट भी कब हो रहा है? बीच में। 8 कॉल्ड अप। और रीइश्यू भी कब हो रहा है? बीच में। और 8 का शेयर क्या प्राइस पे रीइश्यू हो रहा है? 5, 3 रुपए का लॉस। फटाफट करो, पहला वाला एंड में हो रहा है, दूसरा वाला बीच में हो रहा है। कम ऑन डू इट। ये आ गया तो मतलब आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया। 90% शेयर्स हो जाएगा इसके साथ, 90%। नेक्स्ट लेक्चर 10% बचेगा, दैट विल बी सेट अप। तेरे को कुछ बोला भी नहीं है मैं। नेक्स्ट लेक्चर 10% बचेगा, दैट इज डिस्काउंट एंड कॉल्स इन एडवांस। 5-6 समय अभी। Come on, shut up. Good fast. Only 3 entries, 4 feature reissue transfer. Come on. दिमाग लगाओ। 4 feature reissue transfer, 4 feature reissue transfer. प्रीमियम वीमियम नहीं है, नॉर्मल 4 फीचर है, no premium. This is the last sum for the day. Next lecture discount and all will be doing and call in advance.
आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर पूरा टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद आई स्टार्ट विथ आखिरी टॉपिक फॉर द योर वर्टिकल स्टेटमेंट्स. શું સ્કીપ કરવાનું? डेथ के ऑप्शन में आएगा, लेकिन जिसको डेथ में तकलीफ होता है वो देख लो अच्छे से ये टॉपिक. और आगे जाके कंपनी अकाउंट्स करना है तुमको, एमबीए फाइनेंस सीएफए, तो यही काम आने वाला है. कंसेप्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज. जिसको शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, कंपनी फाइनेंस, सीएफए, एमबीए फाइनेंस, फाइनेंस का फील करने का है बीएफएम, उसके लिए मतलब ऐसा ज्वेल टॉपिक है, ज्वेल. इतना इतना जेम ऑफ अ टॉपिक इट इज इंपॉर्टेंट इन दैट वे, इट इज दैट लेवल का टॉपिक, वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस. जिसको फाइनेंस नहीं करने का है वो ठीक है. जेम ऑफ अ टॉपिक, यू फंडामेंटल एनालिसिस जो करते हैं ना हम लोग कंपनीज का, शेयर्स वगैरह पिकअप करने के लिए, अच्छा कौन सा बुरा कौन सा, उसमें ये करते हैं वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस. नहीं नहीं, ये अपडेटेड है, ये अपडेटेड वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस है ना, अपडेटेड टॉपिक है, नॉट 20-15 साल पुराना हुआ, करंट एरा का टॉपिक है. शेयर्स जैसा नहीं है, शेयर्स जैसा आउटडेटेड नहीं है, अप टू डेट टॉपिक है, फर्स्ट क्लास टॉपिक है. बहुत बहुत काम का टॉपिक है, कड़क रीत से पढ़ना. टारगेट इज टू कंप्लीट एवरीथिंग बाय 30th of October. From 31st October to, I told you, 8th November you got 30th to 9th, sorry, 30th to 9th, yeah, 9th is I think 9th, 30th to 9th you got 31st to 9th. 30th is also Saturday, so 30th will be also खत्म हो जाएगा अपना, 29 को ही खत्म हो जाएगा. So 30 से लेके 9 तक दिवाली है. 10th को we will be starting with revision lectures. All revision lectures would be offline. All revision lectures would be offline. Is it clear? Vertical अभी करवाऊंगा ना इसके बाद. अरे चेक करो भाई, क्या भाग रहे हो तुम लोग. इसका एक ये नेक्स्ट लेक्चर खत्म हो जाना है. कंप्यूटर अकाउंटिंग तो छोटू सा कुछ नहीं. अच्छा, शेयर्स का टेस्ट है आपका ऑन दिस मतलब आने वाला ट्यूसडे सर आने वाला ये ट्यूसडे. टुडे इट इज आई थिंक 11th October, so 19th October. 19th October is your test of shares, only shares. Shut up. Check the answers. 32 equity share capital to call in arrear to share forfeiture. बोलो मेरे को, first sum, how much you will multiply your capital with? That is 10,000. How much in call in arrear? 100 into 30. देख रहे हो क्या, समझ में आ रहा है बोर्ड पे? घर वाले 100 into 30, हाँ. forfeiture कितना? 7,000. How many shares did we reissue after that? 100 तो forfeit किया है, reissue कितना किया? सेम किया है. कब किया है? एट द एंड किया है. बैंक शेयर forfeiture to equity share capital. How much you will write in capital? 100 into 100. How much you will write in bank? 100 into 50. And how much you will write in forfeiture? 5,000. तीसरा एंट्री ट्रांसफर, शेयर forfeiture to capital reserve. How much? सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस. वो 10,000 आएगा ना? सॉरी,
10,000 आएगा ना इक्विटी शेयर. हाँ हाँ 10 बाय 5 10 और ये 2000 बराबर है. इज दिस क्लियर? दूसरा पार्ट स्वानंद. पहला 4 फीचर एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल टू CIA टू शेयर 4 फीचर. बताओ मेरे को कैपिटल व्हाट विल मल्टीप्लाई योर कैपिटल विथ? हाँ 8. वाई 8 कॉल्ड अप कैंसिल किया है राइट. तो 1000 into 8 will be 8000. How much in call in arrear? 1000 into 2. 2 रुपया नहीं भरा ना फर्स्ट कॉल का तो 2000. And how much in 4 feature? 1000 into 6. 6000 बराबर है. Reissue bank share 4 feature to equity share capital. How much you will write in bank? 1000 into what? 5. 5000. How much in capital? 1000 into what? Huh? 8. 8 called up ratio किया. And how much is your loss? 1000 into 3. 3 rupees is loss. अच्छा. Transfer entry. Share 4 feature to capital reserve will be how much? बताओ. सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस सब रेशियो करा है 6 minus 3 3. Show me the book and then go. And ये ले लो किसका है. थैंक्स. सर एंड कलेक्ट योर आंसर पेपर. घर वाले 4 बजे तक 5 बजे तक आ जाके कलेक्ट कर लो. डाउट है तो रुको अदरवाइज यू कैन लीव. चलो सर ये इतना 8 मार्क्स के लिए आएगा पूरा. 8 मार्क्स 8 मार्क्स. सर सर हाँ 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 बोलो. सर हर्ष को बोलो